Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is amines. Amines are the carbon and hydrogen and nitrogen compounds. Okay. Amines occur in the living organisms. Many amines that are naturally occurring compounds and they are very active physiologically. What is the formula of amines? That is RNH2. Okay, this is amines. In organic chemistry, carbons form 4 bonds, 4 valence electrons, 4 covalent bond, no non-bonding electron pair. Okay, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा 4. बट नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में, 1 2 3 4 5. ओके, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 1 2 3 बिकॉज नाइट्रोजन कोवेलेंस इज 3 एंड 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस इज नॉन बॉन्डिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. ओके, सेम इन केस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फॉर्म 2 bonds. Okay, now next is structure and classification of amines. Amines is an organic derivatives of ammonia. This is NH4, in which one or more alkyl, cycloalkyl or aryl groups that are attached to the nitrogen atom. Okay, amines are classified as primary, secondary and tertiary. Okay, primary amine is an amine in which the nitrogen atom that is bonded to one hydrocarbon group and the 2 hydrogen atoms. Their general formula is RNH2. This nitrogen that having a 3 valency, one hydrogen attached here, another hydrogen here, and one R group is present here. The functional group present in the primary amine, that is NH2 group. Okay. Now the structure of secondary amine. It is an amine in which the nitrogen atom is bonded to 2 hydrocarbon group and 1 hydrogen atom. Means this is R2NH. Means 2 alkyl group यहाँ present होंगे और एक ही hydrogen जुड़ा होगा. Next, tertiary amine. The amine in which the nitrogen atom is bonded to 3 hydrocarbon groups and no hydrogen atom, means R3N. ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन एटम है. सॉरी, ये एल्काइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन एटम है. ओके, नाउ हाउ कैन यू क्लासीफाई द अमीन्स इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. देखो बेटा, अब ये NH ग्रुप है, दिस इज R ग्रुप और ये भी R ग्रुप है, तो R2NH बना इसका फॉर्मूला. It means which type of group is there? This is secondary amine because nitrogen is bonded to both methyl group as well as phenyl group. Okay. Now next, इस केस में देखो बेटा 1 2 3 alkyl group are present here. So this is tertiary amine because nitrogen atom is bonded to 3 methyl group. Now next 1 2 3 2 फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ये भी क्या है बेटा टर्शरी अमीन है बिकॉज नाइट्रोजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू 2 फिनाइल ग्रुप एंड 1 मिथाइल ग्रुप. नाउ दिस इज ए प्राइमरी अमीन. In this case 1 phenyl ring and having CH3 group. Beta this is R group and here NH2. This group is present here. So this is the primary amine because RNH2 group is a primary amine in which the nitrogen atom is bonded to one alkyl group. Okay. Now next is, this is R group NH2. This is primary amines. This is R group NH2. This is also a primary amine. In this case, this are R group. This is also R group. R2NH. This is secondary amine. Okay. Now, alkyl or aryl derivatives of ammonia is regarded as the amines. These are obtained by replacing one or more hydrogen atom by the alkyl group.
प्राइमरी जो अमीन्स है बेटा उनको क्लासीफाई किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ठीक है। ये डिपेंड करता है 1, 2 और 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट आर रिप्लेस बाय द एल्काइल ग्रुप। दिस इज NH3 ग्रुप। यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव करो, CH3 ग्रुप लगा दो, दिस इज प्राइमरी अमीन। फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, फिर से CH3 ग्रुप लगा दो, तो ये CH3 का ट्वाइस NH बन जाएगा, तो ये सेकेंडरी अमीन हो जाएगा बेटा। फिर से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, टर्शरी ग्रुप आ जाएगा, तो CH3 का ट्वाइस N आ जाएगा, दिस इज टर्शरी ग्रुप। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अमीन्स आर सेड टू बी सिंपल अमीन्स व्हेन ऑल द एल्काइल ग्रुप्स दैट आर सेम एंड मिक्स्ड। कब बोलेंगे बेटा? जब जो ग्रुप्स होते हैं दैट आर डिफरेंट। ओके, अब इनकी जो एक अनदर क्लास भी होती है जिनको हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं बेटा। तो NH4 पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है बेटा, हम 4+ R यूज़ करते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं और R ग्रुप आ जाता है, दिस इज टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड्स। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड्स, ये आयन बन जाता है। ओके, now what is the structure of amines? Like ammonia, nitrogen atom of the amines that is trivalent and carries an unshared pair of electrons. Nitrogen orbitals in amines that are sp2 hybridized. ये देखो बेटा, this is nitrogen, these are having a lone pair of electrons and these are attached to the 3 alkyl group. This is R, this is R and this is R, ठीक है। तो इसमें जो नाइट्रोजन एटम है बेटा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमीन दिस इज पिरामिडल, लाइक अमोनिया की तरह होती है, ठीक है, पिरामिडल होती है। ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन दैट इज ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन दैट डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ अमीन्स। The fourth orbital of nitrogen in all the amines that contain the unshared pair of electrons. Due to the presence of unshared pair of electrons, the angle between the CNE, ओके, इसके बीच में बेटा क्या होता है, लेस देन 109.5 डिग्री होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। Now next is nomenclature. In the trivial systems, amines are named as alkyl amines, but in the IUPAC system, they are named as the alkane amines, means replacing E of alkane with amines. Okay. Now this is the structure. This is ये फिनाइल रिंग है बेटा, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, ठीक है। दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड कार्बन। ओके, तो 2-phenyl propane amine, okay, and its name is N-benzyl N-ethyl benzylamine, okay. So these are the IUPAC nomenclature. Now next is preparation of amines. The amines are prepared by the following compounds. फर्स्ट बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जब हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं तो हम निकल के प्रेजेंस में या FeHCl या SnHCl के प्रेजेंस में करते हैं बेटा। तो ये जो NO2 ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स, NH2 ग्रुप की फॉर्म में चेंज हो जाता है और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो सेम इन केस, इस केस में क्या लेते हैं बेटा हम, दिस इज नाइट्रोइथेन। यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड Fe और HCl ऐड करते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस द NO2 ग्रुप इनटू द NH2 ग्रुप, दिस इज इथेनामीन, ओके, एंड हियर वाटर इज रिलीज। नाउ नेक्स्ट इज अमीनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इस केस में देखो क्या करते हैं, RX हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं बेटा, इसमें एक्सेस में अमोनिया ऐड करते हैं, एक्सेस में अमोनिया ऐड करते हैं तो अमोनियम हैलाइड्स निकल जाता है और यहाँ पे हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। ओके, तो हम ये केस जब क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड्स को एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं तो जो अमीन है प्राइमरी अमीन, इसमें वापस से एल्काइल हैलाइड डालते हैं तो ये सेकेंडरी अमीन बनता है, फिर से एल्काइल हैलाइड डालते हैं, टर्शरी अमीन बनता है। देन आफ्टर दैट वी अगेन ऐड द एल्काइल हैलाइड, देन इट विल फॉर्म द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। इसमें क्या होता है बेटा, हम RC ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं, इसमें हम निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं।
तो बेटा ये वाला बॉन्ड जो होता है, जैसे ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन, वन हाइड्रोजन एटम हेयर, वन हाइड्रोजन एटम हेयर. Again this bond break down, this is hydrogen, this is hydrogen, this is R CH2NH2, this is primary amine. Same in this case, the reduction of nitrile in presence of lithium aluminium hydride, or you can say that sodium amalgam ethanol. In this reducing agent is present here. So after reduction it will form a primary amine. Okay, this bond breakdown and upper bond breakdown. Okay, and 4 hydrogen atom is attached here. Now next is, now this is also nitrile group, and in this case lithium aluminum hydride is added here. Then after that reduction takes place and it will form a benzyl amine. Okay, now next is reduction of amides. This is acid amide RCONH2, and it react with lithium aluminum hydride in presence of ether, and it will form the primary amine and then water. Suppose this is the reaction beta. In this case this bond break down, here hydrogen and hydrogen, this bond again break down and hydrogen, means RCH2NH2. Okay, so this will be primary amine. Now next method is Hoffman bromamide degradation method. ठीक है, हॉफमैन इज अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट थे जिसके नेम पे ये रिएक्शन रखी गई है. इसने क्या कहा था बेटा, एसिड अमाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट किया था. इसमें ब्रोमीन ऐड होता है, अमाइड ग्रुप, दिस इज एसिड अमाइड, एंड हेयर बेस इज एडिड हेयर. सो इन दिस रिएक्शन व्हाट विल बी फॉर्म बेटा, प्राइमरी अमीन Na2CO3, NaBr, 2NaBr, and water is released here. Means this reaction is used to convert the acid amide into the primary amines. Now next reaction is Gabriel thalamide synthesis. इस केस में क्या लेते हैं बेटा, ये गैब्रियल थैलेमाइड लेते हैं बेटा. ये फॉर्मूला होता है बेंजीन CONH CO. Okay, in presence of base what will be formed here, here water is released and what will be formed, N negative K positive. After that alkyl halide is added here, and this is RX is KX is released here, KX is released, and this is N और R, ये बन जाएगा. Okay, base is added. अब जब हम यहाँ पे NaOH बेस डाल देंगे तो क्या बनेगा, RNH2 group is here because this bond break down. After breaking this bond, this here ONA, okay, and here H, this bond is also break, ONA. okay, तो यहाँ पे ONA आ जाएगा, ये सॉल्ट बन जाए, ये थैलिक एनहाइड्राइड वाला सॉल्ट बन जाएगा, और दिस इज प्राइमरी अमीन. ओके, so in this method aromatic amines cannot be prepared by this method because the aryl halides does not undergo nucleophilic substitutions with the anion formed by the thalamide. ओके, इसलिए ये एरोमेटिक अमीन्स कभी भी नहीं बनाता, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए ही स्टेबल है, क्योंकि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं एनायन के साथ. ठीक है, जो एनायन यहाँ से फॉर्म्ड होगा थैलामाइड से, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. इस वजह से ये एरोमेटिक अमीन्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए नहीं है, ओनली प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए ही इस मेथड का यूज़ होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एनालीन. एनालीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो बेटा सेम है आपका, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन. आप नाइट्रोबेंजीन लोगे, रिडक्शन कराओगे टिन और HCl और Fe और HCl की प्रेजेंस में, तो एनालीन इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज फॉर्म्ड. सेकेंड रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सेम यहाँ बेंजामाइड लेंगे, ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में क्या निकलेगा, एनालीन बनेगा, K2Cr2O3 निकलेगा, KBr और वाटर इज रिलीज हेयर. ओके, नाउ दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ ए
amines. Now next topic is physical properties. In physical properties, the lower members are combustible gases. Number C3 to C11 that are volatile liquids, and C12 onwards that are solid. Lower aromatic amines are liquids and higher ones that are low melting solids. Pure amines are almost colorless, but they develop color on keeping in air for a long time. These are aromatic amines. Coloration क्यों होती बेटा? Due to the oxidation of amines by the air. Okay. Next is boiling point. Boiling point increases with increase in the molecular weight. Primary and secondary amines that are higher in boiling point than the tertiary amines of the same molecular weight. क्यों बेटा? बिकॉज प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का? क्योंकि इसमें क्या देखो, ये होता है RNH2, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी. ओके, सेम इन दिस केस R2NH सेकेंडरी अमीन, यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. बट इन केस ऑफ टर्शरी अमीन देर इज नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज नो हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट हियर. Okay, so intermolecular hydrogen bond is formed between the molecules of primary as well as secondary amines. Okay, so its boiling point of primary and secondary amines that have higher as compared to tertiary amines. Okay, now next is, this is primary amine, this is also primary amine. So the hydrogen bonds between the amine molecules that is weaker than the alcohols and carboxylic acid. लेकिन अगर अमीन्स के उसमें देखें बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल और अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, so amines have lower boiling point as compared to alcohols and carboxylic acid. Now next point is, lower members are soluble in water. The solubility in water decreases, but in organic solvent it increases with increase in the molecular weight. Okay, now next is solubility of all the three classes of aliphatic amines in water. क्यों होती बेटा aliphatic amines की solubility? Because aliphatic amines क्या बनाते हैं? That will form the formation of hydrogen bond between the amines and the water molecules. But in case of higher amines, the alkyl group predominates over the amine group, with the result that they have a less tendency to form the hydrogen bond with water. So higher amines that are insoluble in water because they have less tendency to form the intermolecular hydrogen bonding. But aliphatic amines are more soluble in water because they have a tendency to form a hydrogen bond between the amines and the water molecules. Now next is aromatic amines that are insoluble in water because of the larger hydrocarbon part, so they are insoluble in water. Aniline is almost insoluble in water. All the amines are quite soluble in organic solvents like benzene, ether and alcohol, etc. Now the next is basic characters of amines. Amines have a lone pair of electrons on the nitrogen atom, so due to which they behaves as a Lewis base. Okay, the basic character of amines that can be best understood by the in the term of Kb value or pKb value. Okay, देखो बेटा Kb वैल्यू क्या होती है? जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं उसी को बोलते हैं, लेकिन बेस की फॉर्म में लेंगे. देखो RNH2 that hydrolyze means after adding water it will form a RNH3 plus ion or OH negative ions. So what will be the Kb value? Kb is equal to RNH3 positive means product की concentration divided by reactant की concentration. Here water is taken in excess, so does not include in the denominator. Now this is the value of Kb. How will you calculate the pKb value? pKb value is equal to minus log of Kb. Kb is the equilibrium constant. Okay. Now, larger the value of Kb, और अगर Kb की वैल्यू लार्ज होगी बेटा, this value is large, तो माइनस माइनस प्लस. ओके, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb
एंड स्ट्रोंगर इज़ द बेस, उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जिसमें Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी, Pkb वैल्यू कम होगी, तो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम हेयर। अमीन वर्सेस अल्कोहल्स, ईथर एंड एस्टर्स। आप देखते हो अमीन्स मोर बेसिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ईथर एंड एस्टर। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन बेटा? According to this, nitrogen is less electronegative as compared to oxygen. So it is a better position to accommodate the positive charge of the proton. Okay, so amines are more basic as compared to alcohol, ether and ester. Now next is alkyl amines versus ammonia. देखो बेटा इस केस में क्या है, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर है, मीन्स कौन ज़्यादा बेसिक है ये बताया हुआ है। देखो एलिफेटिक जो अमीन होती हैं, मीन्स जिनमें रिंग नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं अमोनियम कैटायंस को, ठीक है, बाय डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट इन पेरेंट अमीन्स मेक्स द नाइट्रोजन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मोर अवेलेबल फॉर द शेयरिंग विद द प्रोटॉन। सो जो बेसिक कैरेक्टर है एलिफेटिक अमीन्स का, दैट शुड बी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट अकर इन द रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर में नहीं होता बेटा ये। जो सेकेंडरी अमीन्स एलिफेटिक अमीन्स होता है ना, वो ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू टर्शियरी अमीन्स। तो बेटा ऑर्डर ये आते हैं आपका, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ इन केस ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन में तो बेटा ये ऑर्डर आता है, पहले सेकेंडरी अमीन्स होता है, फिर टर्शरी होता है, फिर प्राइमरी होता है और फिर अमोनिया होता है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहेगा इथाइल का। मिथाइल के केस में बेटा यही ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। देखो मिथाइल के केस में, इन केस ऑफ मिथाइल दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, इथाइल एंड मिथाइल। ओके, इन केस ऑफ मिथाइल बेटा दिस ऑर्डर इज सेकेंडरी, आफ्टर दैट प्राइमरी, आफ्टर दैट टर्शरी एंड आफ्टर दैट अमोनिया। ओके, देखो बेटा इन गैस फेज where the solvent effect is missing, the basic trend in the nature that is expected, tertiary amine, फिर secondary, फिर primary and फिर ammonia, यही चीज़ पढ़ी हमने अभी, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होता है, जो हम एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायंस है दैट आर स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। फर्स्ट फैक्टर इसमें लगेगा बेटा प्लस आई इफेक्ट। ओके, सेकेंड फैक्टर इसका जो रीज़न रहेगा बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके, सॉल्वेशन इफेक्ट। और थर्ड फैक्टर इसका आएगा बेटा स्टेरिक फैक्टर। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनका ऑर्डर जो होता है सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी आता है। देखो इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, सेकेंड बाय सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल एंड थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द electron releasing, hydrogen bonding and steric factor. These are the three factors which shows this type of nature, which determine the stability of ammonium cations in solution and that help in the basic strength in the order of aliphatic amines. पहले secondary बेटा, फिर tertiary, फिर primary. Okay. अब one more questions arise here. एरोमेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो वीकर बेस होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स। तो फर्स्ट पे एलिफेटिक आएगा बेटा, फिर आपका आएगा अमीन्स और फिर आएगा आपका एरोमेटिक अमीन्स। ओके, अब एरोमेटिक वीक बेस क्यों होते हैं? बिकॉज दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, एंड इट स्टेबलाइज द अमोनियम कैटायंस। द प्रोटॉन एक्सेप्टेबल जो टेंडेंसी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स दैट वुड बी लेस। Okay, so due to resonance, unshared electrons on nitrogen atom in aromatic amines that are less available for the sharing with protons in case of aromatic amines. Okay, तो लेस अवेलेबल होते हैं इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्या होता है, एरोमेटिक अमीन्स जो होता है वीकर बेस होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ओके,
नाउ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। सिंपल देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं जैसे CH3 है, OCH3 है, NH2 ग्रुप है, ये क्या होता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो NO2 है, CN है, हैलोजेंस है, दैट डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो जो इफेक्ट होता है इन सब्स्टिट्यूएंट का वो पैरा पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन। ओके। सेकेंड पॉइंट ये है बेटा, इन केस ऑफ टोल्यूडीन, टोल्यूडीन में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग के पास CH3 ग्रुप लगा दे तो टोल्यूडीन बनता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ दैट विद रिस्पेक्ट टू द एनालिन दैट विल बी डिक्रीजेस। तो हमारा जो ऑर्डर है बेटा वो इस तरीके से आता है, ये आता है पहले CH3 ग्रुप पैरा पोजिशन पे, आफ्टर दैट मेटा पोजिशन, आफ्टर दैट एनालीन, एंड सबसे लास्ट में जो होता है वो आपका ऑर्थो पोजिशन आता है। ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो होता है ये इसके अकॉर्डिंग आता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी क्या आ जाए बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो इस केस में क्या होगा, देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स आर वीकर बेस देन द एनालीन। ये डिपेंड करता है दैट इज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इस केस में देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो यहाँ पे स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, OCH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एनालीन, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमें ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट इंक्रीज द बेसिसिटी, इंक्रीज द बेसिसिटी, बेसिसिटी को बढ़ाएंगे बट एसिडिटी को कम करेंगे। ओके। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये अपोजिट होते हैं बेटा, वही सेम एज इट इज़, ये क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देंगे बट एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ बेसिसिटी की बात कर रहे हैं बिकॉज द नाइट्रोजन एटम्स हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो नाइट्रोजन में कुछ बेसिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो बेसिसिटी है वो कब बढ़ेगी, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ओके। So this is the order of basicity in case of aromatic and aliphatic amines. Okay students, please do practice of these reasoning type questions. Thank you students.